آج جب آپ پریشان ہو تو آپ سب پریشان ہیں. آپ کی پریشانی صرف ایک مذہب تک بندی ہوئی نہیں ہے. یہاں اگر بے روزگار ہے تو ہر مذہب کے بے روزگار ہیں. اگر آپ کو راشن کی دقت ہے تو ہر مذہب کو راشن کی دقت ہے. اگر ہمارے بچوں کو ہائی اسکول تک پہنچنے کی پریشانی ہے تو ہر مذہب کے بچوں کو اس ہائی اسکول تک پہنچنے کی پریشانی ہے. یہاں ایک تنظیم ہے جو میرے بعد یہاں آئے گی، جو مذہب کا استعمال کرتی ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. وہ ڈرا دھمکا کے ووٹ لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فلانا مذہب خطرے میں ہے، آپ کو ووٹ دینا ہے. بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسکیم جو ہے پارلیمنٹ الیکشن میں بھی نہیں چلا. جو لوگ 400 پار کی اس وقت بات کر رہے تھے، 240 پہ ان کی گاڑی رک گئی. اس الیکشن میں بھی میری امید ہے کہ آپ ان کے اس سازشوں کو، ان نعروں کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچئے، اپنے بچیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچئے، ان کی بہتری کے بارے میں سوچئے، اپنے بہتری کے بارے میں سوچئے، اور اپنے ووٹ کا جو ہے، کیونکہ یہ ووٹ ایک بہت قیمتی امانت ہے. اس ووٹ سے آپ بہت کچھ بدل سکتے ہیں، اور ابھی آپ کے پاس وقت ہے باتوں پہ غور کرنے کا. ووٹر کا یہی فرض ہے کہ وہ تمام امیدواروں کے بارے میں سنیں، دیکھیں، ان کی باتوں کو سمجھیں، اور اس کے بعد پولنگ بوتھ کے اندر جا کے ووٹ کا اپنا فیصلہ کریں. کے درمیان جو آئینی رشتہ ہے اس پہ میں ریاست کے درجے پہ بات کر سکتا ہوں، میں 370 اور 35A کی بات کر سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے آج اگر آپ سننا چاہتے ہو تو اپنے روزمرہ کے مسئلوں کے بارے میں سننا چاہتے ہو، آپ کی پریشانیوں کے بارے میں سننا چاہتے ہو، جو آپ کو تکلیفیں ہیں ان کے حل کے بارے میں سننا چاہتے ہو، اور جاننا چاہتے ہو کہ اگر آپ نے اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے میرے ساتھی سجاد کچلو صاحب کو یہاں سے جتوایا تو فرق آپ کی زندگی میں کیا آئے گا، کیا بہتری آئے گی، اس ووٹ کا ہم احسان کس طرح چکا پائیں گے. اب اچھی بات یہ ہے کہ آج اسی موقع پہ چند گھنٹوں کے اندر اندر ہمارے بی جے پی کے ساتھی بھی اپنا جہاز یہیں پہ اتاریں گے جہاں میں نے ابھی اتارا ہے. تو آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہماری باتیں اور ان کی باتوں میں فرق دیکھنے کے لیے. میں تو سب سے پہلے ان سے یہ سننا چاہوں گا، کیونکہ بار بار جب یہ باقی ملک میں پرچار کرتے ہیں، کیمپین کرتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، تو اکثر آپ نے ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے وہ ڈبل انجن سرکار کی بات سنی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جس پردیش میں، جس ریاست میں ان کا اپنا چیف منسٹر ہوتا ہے اور دلی میں پردھان منتری، وزیر اعظم، تو اس دیش میں جو ہے، اس ریاست میں ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے. جس طرح ریل گاڑی پہ اگر سنگل انجن ڈالا جائے تو اس ریل کی رفتار جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن اگر اس ریل پہ 2 انجن ڈالے جائیں تو اس ریل کی رفتار جو ہے زیادہ تیز ہوتی ہے. جموں کشمیر میں پچھلے 10 سال سے ان لوگوں کی ڈبل انجن کی سرکار رہی ہے. کسی بھی طرح آپ دیکھیں، پہلے 2014 کے الیکشن کے بعد بی جے پی نے پی ڈی پی کے ساتھ ہاتھ ملایا. کیا سوچ کے ہاتھ ملایا وہ صرف وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن 2-2.5 سال ان کی حکومت رہی. لیکن جیسے ہی وہ حکومت ٹوٹی تو راج بھون سے سیدھا یہاں پہ جو ہے راج شروع ہوا. مطلب یہ کہ 10 سال مکمل یہاں بی جے پی کے طرف سے ڈبل انجن کی سرکار رہی. اس ڈبل انجن سرکار کے تحت یہاں کتنے مطالبے حل ہوئے، کتنی آپ کی پریشانیاں کم ہوئی، اس کا ہمیں آج احساس ہے. پہلے تو دیکھیں، اگر ہم روزگار کی بات کریں، کون سے ایسے نوجوان ہیں جن کو پچھلے 10 سال میں یہاں روزگار کا آرڈر ملا؟ یہ نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے 2014 سے پہلے، جو دور دراز علاقوں میں موقع پر ڈی جی کو بھیجتے تھے، وہاں پہ کیمپ لگتا تھا، اس کو ہم ڈی جی بھرتی کہتے ہیں. وہاں پہ اگر قد برابر، چھاتی برابر، تو ڈائریکٹ وہاں ڈی جی دستخط کرتا تھا اور ہمارے نوجوان جو ہے پولیس میں کام کرنا شروع کر جاتے تھے. ان 10 سالوں میں مجھے ایک جگہ بتائیے جہاں انہوں نے ڈی جی کو بھیج کے نوجوانوں کو ہمارے پولیس میں بھرتی کی ہو. ایک جگہ نہیں. ہم نے اسکولوں کو دوبارہ چالو کرنے کے لیے رہبر تعلیم کا اسکیم شروع کیا اور یہ کہا کہ اس گاؤں کا پڑھا لکھا کوئی بچہ بچی جو ہے ان کو ہم اسکول میں ماسٹر ماسٹرانی کے طور پہ لگائیں گے. 10 سال ہو گئے اس اسکیم کو تہس نہس کیا. اگر ہم مہاتما گاندھی نریگا کی بات کریں، جس اسکیم کے تحت یہاں چھوٹے موٹے کام کیے جاتے تھے اور ان کاموں کے ذریعے یہاں ورک ڈیز اور ان کا کارڈ بنتا تھا، آج اس اسکیم کو بھی تہس نہس کیا. اگر ہم سوشل ویلفیئر کی اسکیمیں دیکھیں، جس کے تحت آپ کو حکومت کی طرف سے مدد ملتی تھی، چاہے اولڈ ایج پینشن، ویڈو پینشن،
बाकी तरीकों से, उसमें भी इन्होंने कटाई की। सजाद ने अपनी तकरीरों में यहाँ प्रोजेक्टों की बात की, और ये सही है। यहाँ कम से कम 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली के प्रोजेक्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं। उन प्रोजेक्टों में से आप लोगों को कितना फायदा हुआ वो पूछें। जब वो आ जाते हैं यहाँ पे अपनी तकरीर करने के लिए और वोट मांगने के लिए, पूछें जनाब यहाँ तो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उन प्रोजेक्टों में हमारे बच्चियों को क्या नौकरी मिलने का हक नहीं था? क्या हमारे लोगों को ठेका मिलने का हक नहीं था? क्या हमारा इसमें शामिल होने का कोई हक नहीं था? अगर इन लोगों ने अपनी हुकूमत का इस्तेमाल किया तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को परेशान करने के लिए। देखिए ना किस लिहाज से इन्होंने परेशान नहीं किया। अगर बिजली की हम बात करें, वैसे तो बिजली जो है दिन में 8-8, 10-10 घंटे ये कट करते हैं, लेकिन बिजली की फीस आज आसमान में। जहां हमारे दौरे हुकूमत में महीने का बिजली का बिल 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए, आज इन देहाती इलाकों में महीने का बिजली का बिल कम से कम 1650 रुपए। आपकी आमदनी क्यों ना 1500 रुपए हो, बिजली का बिल आपको 1650 रुपए का मिलेगा। महंगाई ने यहाँ लोगों की कमरें तोड़ दी है। अब वजीर आजम साहब ने एक स्कीम के तहत आप लोगों को गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था कि ये चूल्हा पकड़ो, आपको अब बिजली, ये मतलब बिजली इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गोबर जलाने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन वजीर आजम साहब और उनके साथी उस वक्त ये कहना भूल गए कि चूल्हे के साथ गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है और हर महीने उस गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ जाएगी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात का एहसास रखते हुए कि इन चीज़ों के वजह से आप लोगों को इतनी परेशानियां हुई हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में, जो इलेक्शन के वक्त हम वादे करते हैं, कुछ चीज़ों का जिक्र आपके सामने किया है जो मैं यहाँ दोहराना ज़रूरी समझता हूँ। जहाँ पे बिजली की हमने बात की, जहाँ आपका बिल 1600-1800 रुपए महीने का आता है, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे। जहाँ मैंने गैस की बात की, वजीर आजम साहब ने आपको चूल्हा दिया लेकिन वो चूल्हा जलाने के काबिल नहीं रखा। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम हर साल आपको 12 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि कम से कम इस महंगाई का जो आपके ऊपर दबाव बना हुआ है उसको हम कम करें। ये जब हमारे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ आके तकरीर करेंगे, उनसे राशन के स्केल का पूछिए ना, आपका क्या कसूर था कि आपका राशन का जो कोटा है उसको कम घटा के उसको 5 किलो पे लाया है। 5 किलो में किसका आज गुजारा हो सकता है? जो राशन डिपो के तहत यहाँ मिट्टी का तेल मिलता था, जो राशन डिपो के तहत चीनी मिलती थी, उस राशन डिपो से मिट्टी का तेल और चीनी निकाला क्यों गया? आखिर आपकी क्या कसूर थी? अगर इतने बड़े लोग हैं, ये इतनी बड़ी हुकूमत है, इतना डबल इंजन की सरकार है, तो कम से कम आपका स्केल जो है बढ़ जाना चाहिए था। हमने अपने मंशूर में लोगों से वादा किया है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, एक तो हम राशन डिपो के जरिए दोबारा आपको चीनी और मिट्टी का तेल जो है वो फराहम करना शुरू करेंगे और राशन के स्केल को बढ़ा के हम उस लेवल पर लाएंगे ताकि राशन से आपका गुजारा जो है इस राशन डिपो के तहत हो पाए। बेरोजगारी का जो मसला है और खासकर इन प्रोजेक्टों में, हमने अपने मंशूर में लिखा है कि ये प्रोजेक्ट अगर आपकी दरियाओं पे बन रहे हैं, अगर आपके पहाड़ों पे बन रहे हैं, अगर इनका असर आप पे हो रहा है, ये जब बमबारी करते हैं, बारूद फाड़ते हैं पहाड़ को तोड़ने के लिए, तो हमारे मकान हिल जाते हैं, उनमें क्रैक लग जाते हैं, तबाही आपकी होती है, लेकिन रोजगार इन प्रोजेक्टों में आपको नहीं मिलता। ठेकेदार भी बाहर से, पढ़े लिखे लोग काम करने वाले वो भी बाहर से, मजदूर तक भी ये लोग बाहर से लाते हैं और आप लोग इनके चेहरे देखते रहते हो। हमने अपने मंशूर में वादा किया है आप लोगों के साथ कि अगर हमारी हुकूमत आई तो इन प्रोजेक्टों में सबसे पहला हक रोजगार का हमारे बच्चे बच्चियां होंगी, फिर बाहर वाले जो है यहाँ आके काम कर सकेंगे। इसी तरह सोशल वेलफेयर की स्कीमों को दुरुस्त करना, अपने गुजर बकरवाल भाइयों के लिए जंगलों पे जो हक फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको मिलना चाहिए था, वो हक इनको दोबारा लौटाना, और तो और जो आपके काम है। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि आज भी इतना लंबा लिस्ट मुझे आपके मुश्किलात और आपके कामों का दिया हुआ है। मैं अगर इसको पढ़ भी लूं
तो मुझे शायद घंटा एक लग जाएगा। इसमें एजुकेशन की बात, अच्छा जहां मैं तालीम की बात करूं, हमें विरासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने अगर कुछ दिया तो बच्चों के लिए मुफ्त तालीम था। इन लोगों ने जो मेरे बाद आके यहाँ तकरीर करेंगे, इन लोगों ने एक एक करके उसको घटा के आज मुफ्त तालीम लगभग खत्म किया है। हमने अपने मंशूर में, अपने मैनिफेस्टो में यहाँ के बच्चियों से वादा किया है कि अगर हमारी हुकूमत आई, हम दोबारा यूनिवर्सिटी तक इन बच्चों को मुफ्त तालीम फरहम करना शुरू करेंगे, ताकि ये भी मुकाबला कर सकें शहर के बच्चों के साथ, बाहर के रियासत के बच्चों के साथ, और अपना हक जो है हासिल कर सकें। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वोट का सही इस्तेमाल हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एमएलए आपका अपना हो, जिस एमएलए को आप पकड़ सकें। यहाँ पे अब जैसे मैंने कहा, यहाँ कामों की कोई कमी नहीं है। सड़कों को लेके, हेल्थ स्कीमों को लेके, स्कूलों को अपग्रेडेशन की बात है, यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की बात है, यहाँ राशन डिपो खोलने की बात है, यहाँ इन इलाकों को टूरिज्म के नक्शों पे लाने की बात है। कोई मतलब कामों की कमी नहीं है। कभी कभार ऐसा लगता है कि ये 10-20 साल आपके मुकम्मल ज़ाया हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज का यकीन जरूर दिला सकता हूं, मेहनत करने में और भाग दौड़ करने में सजाद किचलू साहब कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। कभी बैठते नहीं हैं, कभी घर नहीं बैठते। जब मैं इनको ढूंढने की कोशिश करता हूं तो अपने इलाके में किसी ना किसी पहाड़ी पे जो है ये अपने लोगों के साथ वहां पे मिल रहे होते हैं, उनके मुश्किलात और मुतालबे हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेहरबानी करके आप एमएलए वोट चुनिए जो कल को आपके वोट लेने के बाद गायब ना हो, जिसको आप पकड़ के बुला से कह सके ना हमने आपको वोट दिया, अब आपने हमारे काम करने हैं। क्योंकि मजहब की बुनियाद पे हम वोट नहीं मांगते, हम लोगों को तकसीम करने की कोशिश नहीं करते, हम लोगों को डराने की कोशिश नहीं करते। मैं यहाँ पे तकरीर में यही नहीं कहूंगा कि फलाना मजहब खतरे में है या ये मजहब खतरे में है कि आप वोट दो तो हमें फलाने को बचाना है। जब तक तबाही होती है तो सबकी होती है। आज जब आप परेशान हो तो आप सब परेशान हैं। आपकी परेशानी सिर्फ एक मजहब तक बंधी हुई नहीं है। यहाँ अगर बेरोजगार है तो हर मजहब के बेरोजगार हैं। अगर आपको राशन की दिक्कत है तो हर मजहब को राशन की दिक्कत है। अगर हमारे बच्चों को हाई स्कूल तक पहुंचने की परेशानी है तो हर मजहब के बच्चों को उस हाई स्कूल तक पहुंचने की परेशानी है। यहाँ एक तंजीम है जो मेरे बाद यहाँ आएगी, जो मजहब का इस्तेमाल करती है वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि उसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। वो डरा धमका के वोट लेते हैं। वो ये कहते हैं कि फलाना मजहब खतरे में है, आपको वोट देना है। बड़ी अच्छी बात यह है कि ये स्कीम जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में भी नहीं चला। जो लोग 400 पार की उस वक्त बात कर रहे थे, 240 पे उनकी गाड़ी रुक गई। इस इलेक्शन में भी मेरी उम्मीद है कि आप उनके इस साजिशों को, इन नारों को जो है कामयाब नहीं होने देंगे। आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, अपने बच्चियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, इनकी बेहतरी के बारे में सोचिए, अपने बेहतरी के बारे में सोचिए, और अपने वोट का जो है, क्योंकि ये वोट एक बहुत कीमती अमानत है। इस वोट से आप बहुत कुछ बदल सकते हैं और अभी आपके पास वक्त है बातों पे गौर करने का। वोटर का यही फर्ज है कि वो तमाम उम्मीदवारों के बारे में सुने, देखें, उनकी बातों को समझें और उसके बाद पोलिंग बूथ के अंदर जाके वोट का अपना फैसला करें। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि सब तमाम बातों को सुनने के बाद आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि 18 सितंबर को जब यहाँ वोट डालने का दिन होगा तो अपनी बेहतरी के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके मुश्किलातों को हल करने के लिए आप एक सही नुमाइंदा सजाद किचलू साहब की सूरत में यहाँ से कामयाब करके भेज दीजिए।